تو 5 سبق ہو چکے ہیں، تو 11 واجبات ہم اس کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں 12 نماز کے واجبات میں سے نمبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سارے ناظرین سامعین؟ امید کرتا ہوں آپ سب اب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب اب جہاں بھی ہیں آپ سب اب کو خوش خرم اور آباد رکھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مفتی ذیشان قادری مدرسہ نور القرآن فتح گڑھ لاہور۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب اب سے گزارش کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل مفتی ذیشان قادری کو زیادہ سے زیادہ لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو آگے سے آگے شیئر کر دیں تاکہ ہماری اچھی سے اچھی باتیں لوگوں تک پہنچ سکے۔ جیسا کہ آپ سب اب کو معلوم ہے کہ ہم نے کل کی ویڈیو ہمارے 11 نماز کے واجبات ہو چکے تھے۔ آج ہم آگے نماز کے واجبات پڑھیں گے، تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے مناظر۔ جی تو تعارف ہو گیا جی، سب کو تعارف فرما دیا میرے کزن نے آپ کو، تو چینل کو سبسکرائب کرو یار جلدی جلدی تاکہ سبسکرائب بڑھے۔ تو ہم نے واجبات نماز کے پڑھ لیے تھے، ٹوٹل کتنے جی؟ 11۔ اور جو یہ نماز کے جو واجبات ہیں یہ نماز کے اندر ضروری ہیں۔ کیا ہے جی؟ ضروری ہے۔ اگر نماز کا کوئی ایک بھی واجب چھوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے لازم؟ سجدہ ہے۔ اگر کوئی سجدہ صاحب نہیں کرتا، واجب بھی چھوڑ دیتا، تو ایسے بندے کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو نماز کے اندر جو ہے واجبات کا خیال رکھنا، نماز کے واجبات کا خیال کرنا کیا ہے جی؟ ضروری ہے۔ جو نہیں کرے گا یا جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے تو ایسے بندے کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ اس کو نماز جو ہے دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور یہ جو نماز کے بنیادی مسائل ہیں ان کو سیکھنا ہم سب کے لیے کیا ہے جی؟ ضروری۔ تو پیچھے ہمارے واجبات کے متعلق جو ہے تقریباً 4 سبق گزر چکے ہیں، 5 گزر چکے ہیں میرا خیال۔ آج 6واں سبق پڑھنے لگے ہیں، تو 5 سبق ہو چکے ہیں، تو 11 واجبات ہم اس کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں 12 نماز کے واجبات میں سے نمبر اچھا کوئی بندہ ہے ایسا کہ جو مجھے 11 پورے کر دے واجبات؟ کسی کو آتے ہیں جی؟ نماز کے واجبات 11 جو ہم نے پڑھے ہیں ان میں سے کسی کو آتے ہیں سارے؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جمعرات والے دن ٹیسٹ ہوگا آپ کا، کب؟ یہ مجھے یاد کروانا ہے، آپ نے کروانا ہے یاد۔ جمعرات کو کیا ہوگا جی؟ نمبر 12۔ نمبر 13 پڑھ کے سنا ذرا، پڑھ کے سناؤ اونچی بات۔ نمبر 12، امام جب قرات کرے خواہ بلند ہو یا آہستہ، اس وقت مقتدی کا چپ یعنی خاموش رہنا۔ نمبر 13، قرات کے علاوہ وہ تمام واجبات میں امام کی مطابقت وہ کدھر آ گئے؟ علاوہ کیسے پڑھیں گے؟ یہ وہ آپ میں ایسے ڈال دیا بیچ میں،
ये तो इसका अलावा भी बनेंगे आप, अलावा। हाँ जी। क़राअत के अलावा तमाम वाजिबात में इमाम की हाँ, मुताबात करना। या इत्तबा करना, इत्तबा लिख ले, इत्तबा लिख देता हूँ ताकि आप परेशानी में मुब्तला ना। इत्तबा। जी, इमाम साहब जब किरात करें, खा वो ऊंची आवाज में बुलंद आवाज से करें या ऐसा आवाज में करें, यानी चाहे वो फजर की नमाज में करें, चाहे वो जोहर की नमाज में करें, तो मुक्तदी का यानी जो पीछे इमाम के पढ़ रहे होते हैं उनका खामोश रहना क्या है जी? वाजिब है, जरूरी है। और नंबर 13 पे किरात के अलावा यानी इमाम के पीछे किरात नहीं करनी आपने, बाकी जो जो इमाम सब करते जाएंगे आप भी पीछे उसी तरह, यानी क्या करनी है इमाम साहब की? इत्तबा करनी है। इमाम साहब रुकू पे जाएं, आपने भी रुकू पे चले जाना है। इमाम साहब तस्बीह पढ़ेंगे रुकू में, आपने भी समी अल्लाह कहेंगे, आपने रब्बना लकल हम्द। सजदे में जाएंगे, आपने भी तस्बीह पढ़नी है, इमाम साहब भी पढ़ेंगे। किरात के अलावा, समझ आई बात? ये लफ्ज किरात के अलावा हर रुकन में आपने इमाम साहब की क्या करनी है जी? नंबर है जी 14। जी तला साहब नंबर 14 पढ़ें। नंबर 14 वित्रों में दुआ कनूत का पढ़ना। नंबर 15 तकबीर कनूत। नंबर 16 आयत सजदा अगर तिलावत की है नमाज में तो सजदा तिलावत करना। जी, नंबर 14 पे है सर, क्या जी? वित्रों में वितर कब पढ़े जाते हैं? ईशान। वितर जो है कौन सी नमाज के साथ पढ़े जाते हैं? जी जी वितर। खान बाबा आप बताएं, वितर जो है किस नमाज के साथ पढ़े जाते हैं? ये अभी नए आए हैं ना, क्या वाली क्लास है ना, इसलिए जरा पता चल जाए। हाँ जी, कब पढ़े जाते हैं बताओ यार। आप हाथ नीचे कर लें, आपसे पूछा है, आप तो पुराने बाबे बैठे हुए हैं ना, ये नए बच्चे हैं, इनसे पूछ रहा हूँ। हाँ बाबा नहीं पता आपको? शरीफ रखे, क्लास खड़ा हो जा। हाँ बाबा बैठ जाओ जी। ईशा की नमाज से पहले के बाद में? बाद में। शाबाश जी, वाह वाह वाह। ईशान साहब आप तो दुबई में रहे हैं और अरब कंट्रीज में आपने वक्त गुजारा है और वहाँ के कारी साहब से आप पढ़ते भी रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वितर जो है किस नमाज के बाद पढ़े जाते हैं। किस नमाज के बाद पढ़े जाते हैं? सारे बोलो। ईशा की फर्ज नमाज पढ़ने के बाद, पहले नहीं पढ़ सकते, ये बात ज़हन में रखें। वितर वाजिब है, नमाज फर्ज है। जो चीज फर्ज हो उसका दर्जा पहले, वो सबसे पहले। बाकी वितर वाजिब है, फिर सुन्नतें हैं, फिर सुन्नतों में मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, मुस्तहब, नफल, मुबाह, सारी चीजें। वित्रों में दुआए कनूत का पढ़ना, उसके अंदर जो दुआए कनूत पढ़ी जाती है वो भी क्या है जी? जरूरी है। आने जनाब अल्लाह अकबर की थी तीसरी रकत तो बाद चुप करके खलोगा जनाब, मजनू साहब खलोते हैं नहीं, ऐसा नहीं। तकबीर कनूत, तकबीर कनूत का मतलब क्या है पता है जी? जी बताएं चाचू। हाँ क्या होती है वो?
तकबीर किसको कहते हैं, यानी कि कैसे करना? तो तकबीर कनूत बताना, तकबीर किसको कहते हैं यानी कैसे करना है? ऐसे करना। तकबीर कनूत यानी कि 2 रकतों के बाद जब हम बैठेंगे, बैठने के बाद हम फिर खड़े हो जाएंगे, फिर हम किरात करेंगे, सूरत फातिहा का सूरत मिलाएंगे, सूरत फातिहा के बाद सूरत मिलाने के बाद फिर हम चूंकि वित्रों की 3 रखते हैं तो फिर हम अल्लाह अकबर करके क्या पढ़ेंगे जनाब वाला दुआए? पता चला जी? नंबर 16, आयत सजदा अगर तिलावत कर दी नमाज के अंदर तो नमाज में सजदा तिलावत करना भी, यानी अगर आप जैसे कौन सी कोई आयत पढ़ो सजदे वाली, कौन सी है? कोई पढ़ो सूरत किसी आयत में, 30वें पारे वाली पढ़ दे भाई, 2 है ना सजदे पढ़े, एक सूरत अलक में है और एक सूरत इंशिकाक में है जी, पढ़े जी, सूरत इंशिकाक वाला पढ़े जी, कोई बंदा पढ़ दे जी। इंशिकाक के अंदर आयत सजदा आती है, आप में से कोई बंदा पढ़ दे, वो कौन सी है, कैसे है जी? पढ़े शाबाश, ठीक है जी, बिल्कुल सही पढ़िए जी। हाँ जी, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, कारी साहब सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सारे बोलो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, कोई बात नहीं कारी साहब, कोई मसला ही नहीं, बात का हमारे ज़हन में भी चीज़ें नहीं होती भाई, ये कोई अदम इल्म की जनाब वाला निशानी नहीं है कि एक बंदे ने पढ़ी हुई चीज़ उसको यानी याद ना आए फौरी तौर पे, कोई ज़रूरी नहीं है कि फौरी याद आ जाए उसको, हो सकता है 1 मिनट बाद में भी आ सकती है, 10 मिनट बाद भी आ सकती है फिजान साहब, और 1 दिन बाद भी आ सकती है, तो ज़रूरी नहीं है कि बंदा फ़ौरन बताए। बहरहाल जो फ़ौरन बताता है तो ज़ाहिर सी बात है वो बंदा पूरी तवज्जो के साथ पढ़ता है, क्या जी? हाँ, अब जुमेरात वाले दिन आपका है जी टेस्ट, क्या है जी? गौर से सुन लें, वीडियो के अंदर मैं बता रहा हूँ ताकि आप फिर मुझे ये ना कहें कि कारी साहब आपने बताया ही नहीं था। जुमेरात को आपका है जी टेस्ट, वुजू गुस्ल से लेकर यहाँ तक सारे हैं, उसमें जो दुआएं वगैरह पड़ी हुई हैं, गालबन पड़ी थी दुआएं जी, और क्या पड़ा था? बहरहाल जो भी कॉपी पे लिखा हुआ है वुजू गुस्ल से लेकर यहाँ तक टेस्ट होगा उस दिन। पहले टाइम भी 10 बजे छुट्टी करके टेस्ट लूंगा, सेकंड टाइम भी 1 घंटा टेस्ट लूंगा, 2 पूरा दिन टेस्ट होगा। टेस्ट के अंदर कोई बंदा गैर हाजिर नहीं हो, अगर होगा उसको घर से उठाया जाएगा, बाइक भेजेंगे, जहाज भेजेंगे, हेलीकॉप्टर भेजेंगे, जैसे भी भेजेंगे, घर से उसको मंगवाया जाएगा। टेस्ट होगा ताकि आप कॉपी को अच्छे तरीके से देख ले। आज पीर है, मंगल है, बुध है, आगे फिर 3 दिन तो है ना, अभी 4थे दिन टेस्ट है 10 बजे जाके, अच्छे तरीके से इसको याद करें ताकि अगर मेरा बढ़ाते हुए अगर 1 किलो खून जो है ब्लड सड़ गया तो कम अज कम टेस्ट वाले दिन तो ही पाओ तो सड़ना चाहिए कि नहीं? हाँ, अगर मेरा यहाँ गर्मी के खड़े हो के जनाबे वाला पसीना निकल के खून जो है वो ज़ाया हुआ है, 1 पाव तो आपका भी ज़ाया होना चाहिए। हाँ जी, इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं जी जुमेरात वाले दिन टेस्ट के साथ। वैसे तो कल सबक पढ़ना है लेकिन टेस्ट में इंशाअल्लाह ताला आपको दिखाएंगे, वो भी मिलते हैं जी जुमेरात वाले दिन फिजान साहब। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।